first of all, tell me, have you all completed? Is there anyone who has not yet completed property 5's questions? Because I did not give much of the homework for property 5 and 6. Not 6, I have not given 5. All right. Sir, doubts. Sir, मैं doubts बस वो doubts से लेंगे property 5 पे doubts से लेंगे. Can anyone forward it on the group so that I can open it? sir, group 3 BM server. Okay, एक minute. तुम लोग का कोई कॉलेज एग्जाम भी है क्या आज? सर आज नहीं है बट सेमेस्टर चालू है. अच्छा, सेमेस्टर्स में कौन सा एग्जाम है आज? विच सब्जेक्ट? सर आज इंग्लिश था बट पोस्टपोन हुआ. Just got postponed. Sir, today's chemistry. Yes, sir. Today's chemistry. today's chemistry वो postpone हो गया. अच्छा, केमिस्ट्री का टाइमिंग्स क्या है? 3:30 to 5. 3:30 to 5. Okay, okay. Okay, fine. So guys, you posted on which place? So group 3. Group 3. Just a moment. I've got it. Yes, thank you. Property 5. No, property 4. Is there any doubt you have in property 4, guys? Anyone? sir illustration 1 का 4 Illustration 1 का 4. You're talking about this question. Property 4 में fourth question. This is minus pi by 4 to pi by 4, minus pi by 4 to pi by 4, and it's nothing but x raised to power 7 minus 3x cube 3x5 it is. नेक्स्ट टाइम से स्क्रीनशॉट्स की जगह पीडीएफ देंगे तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी. प्लस 3x क्यूब माइनस x प्लस 1 divided by cos square x. Guys, when I look at this limit now, I always look at the even odd function property first. So look at even odd property first here. If you look at this function along with this division, just look at this. If I take it fx, then f of minus x will be fx, minus fx, sorry, odd function. Right? If you look at this function, x to the power 7 minus plus 3x cube divided by cos raised to power minus x divided by cos square x and plus 1 by cos square x. Just look at this function, guys. This is odd function. The value is 0. Minus pi by 4 to pi by 4. Just look at the minus x को minus x से replace करो. Odd powers है ना, तो negative बाहर आ जाएगा ना common. और cos of minus x तो cos x ही होता है. तो अगर मैं इसको ये वाला integration देखूं, तो ये मुझे मिलेगा minus pi by 4 to pi by 4 only cos square x, which is not difficult one. 2 times 0 to pi by 4 sec square x. The one who has asked this question, have you understood, my dear? yes sir All right. Property 4 में और कोई डाउट किसी को है, guys? Sir, question 9. Property 4 में सब question 9 है ही नहीं. सर वो 13 पेज के बाद वाला पेज है ना उसमें कॉट इनवर्स वाला. तो यार वो प्रॉपर्टी 5 का है. मैं प्रॉपर्टी 5 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कोई किसी को डाउट है?
1 to 5. Okay. 5 to 10 में The ninth. 5 to 10 में 9th वाला डाउट है. Okay. 9th वाला डाउट है. बच्चों ध्यान दो थोड़ा. 0 to 1 cot inverse 1 minus x plus x square. Now what is the thought process? Either we integrate using integration by parts by writing 1 here. It will take time. Since you are in property 5, so you must have done one thing. X को 1 minus x से यहाँ replace किया होगा, right? फिर कुछ वापस same सा ही आ गया होगा, तो फिर फंस गए, right? So guys, it's really not necessary every time that you've been given a question and you apply property 5 immediately. Sometimes you need to change the function smartly and then apply your property. Like I'll tell you. Can you write it 0 to pi 0 to 1 tan inverse of 1 upon 1 plus x into 1 minus x? Can I write it like this, guys? Since this is positive. Why it is positive? Can anyone tell me? So delta less than 0. Discriminant less than 0 and coefficient of x square is positive. So quadratic equation is a chapter which you should keep it in mind all the time whenever you study. Okay. So guys, this is always positive, and cot inverse x may, if x greater than 0, you can always write cot inverse x as a tan inverse 1 by x. Tan inverse 1 by x. So that denominator will be x into x minus 1, right? Yes, sir. X into x minus 1. Sorry. Okay. So guys, can you write the numerator as x minus 1? Yes, sir. Okay. Now, can you tell me, we have got a formula actually without any condition. Tan inverse x minus tan inverse y पे कोई restriction नहीं था ना, देखो. IDF किया है ना हम लोगों ने. Yes, sir. IDF में क्या फॉर्मूले 3 फॉर्मूले किए थे विदाउट रिस्ट्रिक्शन. कौन कौन से थे बताओ, चलो याद करो, बताओ. हाँ, एक फॉर्मूला था sin inverse x minus y का. एक था cos inverse x plus cos inverse y, बराबर. And the sin inverse x minus sin inverse y. और तीसरा फॉर्मूला था tan inverse x minus tan inverse y, राइट. और ये याद करो tan inverse x minus tan inverse y क्या बन गया बताओ. 0 to 1 tan inverse x minus 0 to 1 tan inverse x minus 1 dx. Now guys, I am applying king over here. king का मतलब x को किससे रिप्लेस करना है? x को किससे रिप्लेस करना है? a plus b minus x 1 minus x से रिप्लेस करना है, बराबर. ये I'll keep aside actually. 0 to 1 same tan inverse x. Now minus, what do you get here? 1 minus x minus 1. Right. 1 cut. Tan inverse minus x. Tan inverse minus x means minus tan inverse x, isn't it? Minus tan inverse x. So I'm writing it directly 0 to 1 tan inverse x. Guys, this becomes 0 to 1 2 times tan inverse x. Now guys, you have to solve it using integration by parts. There's no other way to solve it, right? I mean, I told you previously also, using property can help you to some certain extent. Otherwise, indefinite integration के easy questions तो तुम लोग को आने ही चाहिए. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर्टी 5 का है, उसमें कुछ 1 plus sin 2x जैसा कुछ बच जाता है ऊपर, अगर आप लोग ध्यान दो. Can you solve it, or you have to? I have to solve it. The one who have asked this question. अरे भाई, किसी ने जिसने क्वेश्चन पूछा उसको तो पता होगा ना, उसको समझ में आया कि नहीं आया. हाँ सर, try कर समझ लेंगे. आया सर. Yes, sir. ठीक है, सॉल्व करूँ आगे की छोड़ दूँ? नहीं सर, अभी तो हो जाएगा, अभी बाय पार्ट से करना है. All right. So guys, next question number 9 के बाद अभी जगह है इस बोर्ड पे एक और क्वेश्चन. सर 11th कर सकते हो. आप 12th का क्वेश्चन नंबर 11. Okay, go ahead.
सर आंसर मैच नहीं हो रहा था हाँ उसमें। ठीक है, फिर तो पूरा ही करना पड़ेगा। देख लेता हूँ, लेंथ ज्यादा होगी तो दूसरा पेज लेते हैं। अच्छा हाँ, आंसर मैच नहीं कर रहा ना, सो इसका स्क्रीनशॉट में से कौन ले रहा है? प्रियांशु ही ले रहा है क्या? Yes, sir. ओके, सो टेक द Sir, स्क्रीनशॉट। screenshot taken. ऑलराइट, नंबर 11 आंसर मैच नहीं कर रहा ना। हाँ सर। π/4 to 3π/4। वैसे मैंने ये क्वेश्चन बोर्ड पे कभी किसी को बताया नहीं है, तो मुझे पता नहीं इसका आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा होगा। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी आल्सो टू लुक एट द क्वेश्चन व्हाई आंसर इज नॉट मैचिंग। dx, this is the question guys. As you know, like I have to remove this x first of all, है ना? So what I have to do, what is the sum of these two guys? 3π/4 plus π/4 So pi. pi. So King. I'll use king first and then add. Okay, π/4 to 3π/4 and pi minus x. Sin pi minus x is sin x only, divided by 1 plus sin x. डिनोमिनेटर सेम, तो वैसे ही ये क्वेश्चन इजी हो जाता है हम लोग के लिए। सो I'll add this एंड गाइस इसको ऐड करेंगे तो पाई टाइम्स ये वाला पार्ट इसके साथ बच जाएगा, माइनस एक्स टाइम्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और एक्स टाइम्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आ जाएगा बाहर, और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बच जाएगा। अब गाइस इसके बाद चैलेंज ये है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करना और फाइनल आंसर निकालना, वो एक छोटा सा चैलेंज है। ऑलराइट, so can we do one thing, we add and subtract 1 here? लगता ही है स्प्लिट हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो what do you get? 2i is equal to pi times pi/4 to 3π/4 एंड क्या आएगा? इरिटेटिंग तो हो गया है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 1 dx माइनस पाई टाइम्स, अब गाइस बच रहा है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स का मतलब 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स एंड सो वरना sin x को tan x/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तू वैसे सॉल्व करना चाह रहा है क्या? सर मैंने वैसे किया, उससे नहीं आ रहा था। अच्छा चलो ठीक है, वैसे कर देता हूँ। So, 1 प्लस I have smaller method. Like in the first step only, you can multiply and divide by 1 minus sin x. And हाँ, then तो वो यहीं पे आएगा, फिर भी किंग तो लगाओगे ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रही हो ना? नहीं सर, एक स्टेप में हो जाता है। अच्छा एक मिनट रुको, पहले जैने किया उसको क्या गड़बड़ होगी उसको देख ले एक बार। आंसर भी मैच हो रहा है। Alright, we'll discuss your method. Alright, 1 plus 2 tan x/2 upon sec square x by 2, और यहाँ भी कुछ बचेगा ना? 1 plus tan square x/2। 1 plus tan square x/2। मैंने लग रहा है नीचे वाला ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। हाँ सर। π/4 to 3π/4 ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और tan x/2 को लेंगे t, तो इसको अलग से इधर ही सॉल्व करना है। इसका आंसर कितना आएगा बताओ? 2i is equal to 3π/4 minus π/4 कितना हुआ pi गाइस? into pi square by 2। pi into pi/2। यस। अच्छा ये जो आ रहा है इसको ध्यान देते हैं थोड़ा, देखो ये बनेगा, इसको t लेंगे, मतलब tan x/2 को t लेंगे, इधर लिख रहा हूं मैं, tan x/2 को t लेंगे तो sec square x/2 dx dt में चला जाएगा, 2 dt में जाएगा, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2 dt, तो 2 dt बनेगा, तो ये रफ में चल रहा है सिर्फ 2 dt डिवाइडेड बाई सर मिल गया मिस्टेक सर, सॉरी। पक्का हो गया? हाँ सर, मैंने वो हाफ dt ले लिया था इसलिए मिस्टेक हुआ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये आ जाएगा, मतलब क्या है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा घिसने वाला हो गया। कोई तो स्टूडेंट है जो बता रहा है कि इसका इजी मेथड है, उसको हम लोग एक बार सुन लेते हैं, ठीक है? और उसको साइमल्टेनियसली लिखते हैं, इसके साथ में लिखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं नाउ सॉल्व, ठीक है?
10 x by 2 is equal to t, 10 x by 2 is equal to t। अच्छा, तुम जो बता रही हो उसको मैं ले रहा हूं I is equal to pi by 4 to 3 pi by 4 x into, In the third step, instead of adding and subtracting 1, I multiplied and divide by 1 minus sin x. no, yeah, that's what I was doing actually. I know that method is easy, right? Huh. You were telling me here only if I multiply divide it becomes easy। No, sir, in the third step, not in the. ठीक है, And that तो then, वो तो जैने इग्नोर किया ना, वो बोल रहा है कि नहीं सर उससे नहीं, मैंने 10x by 2 लिख के कुछ गलत किया है, तो हम लोग उस गलत को ही जा रहे थे। वैसे वो मेथड मैं भी लाइक करता हूँ, इसको 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना तो ये फास्ट हो जाएगा। हाँ सर, फिर So 1 minus sin x से कैसे होता है सर? अरे बाबा देख, ये आया ना ये वाला स्टेप, इस स्टेप को वापस लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। इसको क्या लिखेगा, ये तो चला गया पाई स्क्वायर बाई 2, चलिए ठीक है। अब इसके बाद तू क्या करेगा, इस स्टेप के बाद तू क्या करेगा, इसको इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस sin x, बराबर ना? Yes sir. तो इसको तो लिख सकता है 1 माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x, से यस और नो? अच्छा ओके, गॉट इट। सो sec square x और sec x sin x हो जाएगा। हाँ, sec स्क्वायर x माइनस sec x into tan x, डायरेक्ट इंटीग्रेट है। हाँ सर। ठीक है, दैट वे। सो 11th इज डन। नाउ व्हाट एल्स गाइस? वैसे ये क्वेश्चन इसीलिए दिए कि आप लोग सॉल्व करो, डाउट्स आएंगे तो इधर। अब ये क्लास में क्वेश्चन देखे तो टाइम बहुत वेस्ट होता है ना, सारे क्वेश्चन क्लास में ही करो तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना वो, इसलिए आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं, तो डाउट्स तो लेने। नेक्स्ट कौन सा है सर 14 में 12th वाला। प्रॉपर्टी लगाने के बाद, नहीं पहले 14 से पहले 12th वो बोल रहा है। अरे यार 12th वाला क्वेश्चन बहुत बार किया हम लोगों ने, पता है, इसमें तुम डर गए इससे। 12 का आंसर गिवन नहीं है, सीधा डाउट है उसमें। अरे यार ये तो मतलब उसको छोड़ दो ना, आंसर तुम्हें समझ में आया ना, तुम लोग ने किंग लगा के ऐड किया तो ये e की पावर वाला पार्ट उड़ जाता है ना। क्वाड्रेटिक आ रहा है और सर उसका प्रोफाइल मालूम अब ठीक है ना, वो क्या है उसका क्या देखना, मतलब कोई तुम्हें बोले कि सॉल्व 4 क्वेश्चन 1/quadratic ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और एबीसी चेंज मार दे, तो तुम लोग क्या करोगे? समझ में आ गया ना, एक ही करोगे ना उसमें से, चारों क्यों करोगे? हाँ सर, बट उसमें कुछ रूट 21 जैसा आ रहा था मुझे। हाँ सर, रूट 21 आंसर लिखा हुआ नहीं ना, तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, आने दो ना। अब किसी ने सॉल्यूशन लिखा होगा तो एक बार प्लीज ग्रुप पे डाल दो, कोई आंसर में कुछ वेरी कर रहा होगा तो कोई भी कमेंट करेगा ना, दैट विल सेव योर टाइम आई गेस। ओके, ऐसा तो नहीं है ना किसी को आया ही नहीं है, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ क्वेश्चन। ऑलराइट, सो 12th के बाद सर 14 में किंग एंड ऐड के बाद जो फाइनल इंटीग्रल आ रहा है सर वो सॉल्व नहीं हो रहा था, एक बार वो कर सकते हो? अच्छा एक मिनट ना, अभी जगह है 14। देख 14 में किंग के बाद में x गायब हो गया, से यस और नो? यस सर। x गायब होगा तो 14 में क्या बच रहा है? 2i इज इक्वल टू लिख दूं क्या डायरेक्ट? हाँ यस। pi by 2 0 to pi by 2। और देख मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये जो sin x cos x लिखा हुआ है ना, ये sin x cos x, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं, बराबर। और नीचे मेरा आ रहा है cos 4x प्लस sin 4x को तो क्या लिख सकता है? 1 minus 2 s square c square। रुक एक बार रुक, इसको मैं ऐसे करता हूं, sin 4x जो है ना उसको लिखता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर प्लस cos 4x, बराबर। अभी ठीक है? यस सर। अब मैं cos स्क्वायर x को t लेता हूं, देख तो बता लिमिट्स क्या बन गई, ये 2i में ये 2 भी नीचे ले जा, तो i हो गया पाई बाई कितना बता, पाई बाई 8 हो गया ना, 2 2 2 pi by 8 और लिमिट्स 1 to 0। लिमिट्स 1 to 0 पे 1 और 1 to 0 हो गई। ओके गुड। cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 2 sin x cos x जो विद न्यूमरेटर नेगेटिव है 2 sin x cos माइनस हो गया है ना, तो dt अपॉन कितना आ गया बता? 1 माइनस t होल स्क्वायर, बराबर ना, यस सर। प्लस t स्क्वायर। डोंट यू थिंक इट्स अ सर 1 by quadratic आ जाएगा? ओके सर। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना अभी, या करके? यस सर, अभी हो जाएगा। दैट्स इट। हेलो सर। अच्छा हाँ बोलो बेटा। सर 12th का जो डिनोमिनेटर का सेकंड ब्रैकेट है उसे कंफर्म कर सकते हैं एक बार?
12th के डिनोमिनेटर का सेकंड ब्रैकेट, इसमें तुम्हें एक काम करना था, x को 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करना था। ध्यान दो, 12th का ये जो है ना dx अपॉन ये ब्रैकेट इनटू e रेज टू पावर 6 टाइम्स x को किससे रिप्लेस करेगा बता? 1 माइनस 0 to 2 है ना, x को किससे रिप्लेस कर रहा है इसमें तू? a प्लस बी माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा है, तो x को रिप्लेस किया 2 माइनस एक्स से, तो -2 प्लस एक्स बराबर, ये हो गया। यस सर। और आगे क्या बच सर गया? अभी हो प्लस जाएगा। तो बेटा ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, ऐड करेगा तो ये गायब हो जाएगा, पता है ना? हाँ सर, मुझे बस कंफर्म करना था वो क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या था। अच्छा, वो उसमें मतलब स्क्रीनशॉट में समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ ठीक है, सर, थैंक यू सर। इसीलिए मैंने बोला कि अपन लोग पीडीएफ ही बना के भेजते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। प्रियांशु फोटो हो गया? Yes, sir. ऑलराइट, फोर्टीन के बाद कौन सा है गाइस? 15 तो इजी है, 16 भी इजी है। 15 तो घिसने वाला क्वेश्चन पता ही है ना तुम लोग को, प्रोफाइल है। 16 17 कोई डाउट 17 में? 17 क्लास में किया था क्या? नो सर। हो गया क्या तुम लोग को? आंसर किया हुआ है? सर बस Yes, एक sir. टाइम आप मेथड लाइक वेरीफाई कर सकते हो। पता है इसमें क्या है? इसमें जो है ना, इसमें घिसाई है पूरी, मतलब पूरा दम लगाना पड़ता है घिसने में। आई टेल यू हाउ। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन देखते ही कोई बोलेगा छोड़ दो, बट ऐसा है नहीं। -1/√3 to 1/√3। अरे तुम लोगों ने किया भी है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो फिर देखो गड़बड़ है, फिर उसके सर बाद किया में था सर। हाँ नहीं किया ना, तो फिर उसके में मैं हेल्प ही नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी। 1 - x4 cos इनवर्स सर किया था, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। हाँ 2x²। गाइस तुम लोग को पता है ना cos इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स। तो बताओ इसमें अगर मैं किंग लगाऊंगा एक बार, तो मुझे क्या मिलेगा? -1/√3 to 1/√3। x को किससे रिप्लेस करेंगे? -x से, है ना? a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये कितना बचेगा? x4 अपॉन 1 - x4। इसमें तो फर्क आएगा नहीं, और जो यहाँ -x आएगा ये तो सेम रहेगा ना? सही है सर? यस सर। यहाँ माइनस आएगा तो cos, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? पाई माइनस cos इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² dx। सोचो ऐड करने पे क्या होगा, क्या बड़ी चीज गायब हो जाएगी? थिंक। cos inverse 2x by 1 plus cos x इनवर्स square. 2x वाला यहाँ से वहां से गायब हो जाएगा ना, तो गाइस बचेगा क्या बताओ? 2y = कितना लिख दूं? 2y = -1/√3 to 1/√3 pi और times x raised to 4. पाई टाइम्स x Even function हो जाएगा ना सर? 1 - x4 करूंगा सब कुछ करूंगा, राइट? अच्छा ये इवन फंक्शन है तो इसको यहाँ 2 टाइम्स करके, लेकिन इसी स्टेप में नहीं लिख के आगे लिख देते हैं 2y टाइम्स। So 0 to 1/√3 होगा. तो 0 हो जाएगा ना? 0 to 1/√3। और एक काम करते हैं, इसी में यहीं पे माइनस साइन बाहर कॉमन लेते हैं, तो 1 - x4 + 1 बराबर 1 अपॉन 1 - x4 बराबर है यहाँ तक? सर बाहर 2 pi भी आएगा. हाँ बाहर 2 पाई भी आएगा, मैं भूल गया एक्चुअली। ठीक है, आपने तो क्या सर किया माइनस स्टेप में? कैसे आया? 2y = 2 पाई टाइम्स विद नेगेटिव साइन। अरे बाबा x4 ये पॉजिटिव था ना, इसको माइनस हाँ में यस हाँ गॉट इट सर। 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट, एडिशन वाला यहाँ आ गया, सब्ट्रैक्शन वाला यहाँ आ गया, राइट? अच्छा अब ये क्या बन गया बताओ? ये नहीं बन गया, 2 तो कट गया, चलो
तो I इज इक्वल टू कितना आ गया -पाई 0 to 1 by √3 0 to 1 by √3 राइट। अच्छा 1 dx minus 1 integration dx और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये भी माइनस है तो प्लस पाई, देखो माइनस और माइनस प्लस पाई और ये कितना बच जाएगा dx 0 upon to 1 1 by minus √3 x 0 to 1 by √3 और इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 1 minus x square into 1 plus x square। पार्शियल फ्रैक्शन वाला देखा है वीडियो आप लोगों ने कि नहीं देखा है? हाँ सर। होमोजेनियस पार्शियल फ्रैक्शन बन गया ना, dx upon 1 minus x square टू और से dx upon 1 मल्टीप्लाई plus डिवाइड और फिर ऐड 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सॉल्व करके दूं क्या पूरा? और नहीं से हो जाएगा। नहीं सर, हो जाएगा। बस थोड़ा गंदा ही दिख रहा है, अदरवाइज आंसर तो अच्छा सा जो आंसर आ रहा है ना बच्चों आ जाएगा। तुम्हें पता है इसका इंटीग्रल जो है ना, इसका इंटीग्रल देखो ध्यान दो, इसका इंटीग्रल तुम्हें याद नहीं हुआ इसका इंटीग्रल एक्चुअली, ये सर उसी पे याद करो भी मत, इसके भी तो फैक्टर्स बन जाते हैं 1 + x 1 - x और फिर हाँ मल्टीप्लाई तो ln 1 plus x upon 1 minus x या फिर ln 1 minus x upon 1 plus x, वो डिपेंड करता है हाफ के साथ में, हाफ भी आएगा है ना। और बच्चों एक बात ध्यान रखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी क्वेश्चन की लेंथ से मत घबराओ, इट हैज गॉट अ लेंथ, व्हाई आई टेल यू। तुम लोग इतना सब जानते हो कि इसमें क्या क्या करना है, लेकिन उसके बाद भी जब करोगे ना तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज आल्सो अ चैलेंज, बिकॉज समटाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव का मिस्टेक्स इसमें होता ही होता है। मैं भी बहुत बार एक ही क्वेश्चन को बहुत बार करा चुका हूं, लेकिन तब भी फ्लो में लिखते टाइम में नेगेटिव पॉजिटिव की मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से आंसर नहीं मिलता है। तो केयरफुली चेक कर लो उसको, ठीक है। दैट ओके इसके बाद 17 क्वेश्चन हो गया, तो फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया अपने इसका। सेकंड पार्ट वी आर लुकिंग एट, सो लेट्स सी सेकंड पार्ट। सर हाँ सर इस वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा अलग किया कि पहले x को x = tan थीटा लिख दिया, फिर अंदर cos इनवर्स के अंदर sin थीटा बनेगा, तो उसको sin थीटा को cos π/2 माइनस थीटा लिख दिया, फिर सॉल्व किया। ठीक है ना, हो जाएगा उससे भी, ठीक है ना। ओके सर। हाँ गाइस सेकंड वाली पीडीएफ में कोई डाउट है किसी को? तो सर प्रूव दैट कर सकते हो? हाँ प्रूव दैट अभी मैं 10 मिनट बात करूंगा, ठीक है। अच्छा कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। तुम्हें पता है एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने की थी वो 0 to 2a वाली, लास्ट टाइम कर ली ना। 6 प्रॉपर्टी स्टार्ट कर चुके ना हम लोग। हाँ सर, जिसमें f of x = f of 2a - x, x वो को वाला। 2a minus x से क्या थी प्रॉपर्टी, चलो बताओ प्रॉपर्टी 6 क्या थी? integration 0 to 2a इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx is nothing but 2 times 0 to a fx dx, या तो ये होगा या if फिर f of 0 होगा। कंडीशन अपन लिख देते so हैं, condition हो गई if f of कंडीशन डाइस 2a डाल minus दिया मैंने, आपको बताना f of 2a minus x fx होगा और माइनस x होगा तो ये 0 आ जाएगा, यही है ना yes प्रॉपर्टी। sir चलो अब इसका सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है, सेकंड पार्ट इसको दोनों तरफ सॉल्व करेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट 0 to π/2 sin 2x into sin x, oh f of yes sir f of sin 2x right, sin x is equal to under root 2 0 to π/4 f of cos 2x बच्चों ये into cos x। बच्चों अब ये तो गारंटी हो गई कि हम लोग f of cos 2x को f of sin 2x में यहीं से चेंज कर सकते हैं। बताओ किंग लगेंगे तो ये किंग लगेगा तो ये sin 2x बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। मानते हो ना? अगर मैं इधर में किंग लगाऊं तो क्या लगेगा बताओ? RHS LHS दोनों लेंगे बच्चों, इसमें ध्यान देना। RHS में क्या बनेगा, किंग लगाऊंगा तो √2 times 0 to π/4, और जरा बताओ f of कितना बन गया बच्चों? x cos को of π/4 minus x 2 times π/4 minus 2x मतलब अंदर cos 2 टाइम तो π/2 minus x f of sin 2x ना, sin 2x yes sir sin 2x लिख दो ना डायरेक्टली। थोड़ा सा एक्सटेंसिव सोचा करो, हाँ ऐसे लिख के सोचोगे तो डम हो जाएंगे अपन। थोड़ा एक्सटेंसिव सोचो,
वरना कोई रफ पेज साथ में रखो और तुरंत लिख के और रिस्पॉन्स करो। और बच्चों ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ x π/4 माइनस x बनेगा ना। x को किससे रिप्लेस करें? हाँ, तो इसमें मैंने किंग लगाया। cos π/4 माइनस x क्या बन रहा है बच्चों, बता सकते हो? 1/√2 1/√2 sin x plus cos x प्लस sin x, बराबर ना? Yes, sir. बच्चों ध्यान दो, ये 1/√2 एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। 1/√2 कॉमन आके कट जाएगा ना, देखो उससे। अरे बाबा एक ये फैक्टर है और 1/√2 इससे ब्रैकेट से बाहर आएगा, फिर बाहर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा बताओ? 0 to π/4 f of sin 2x into sin x plus cos x, sin x plus cos x, यही है ना? बोलो बच्चों। हो गया अब सर। अब बच्चों मुझे बताओ, ये तो तुम्हारा RHS हुआ अभी, अब LHS का क्या करोगे बच्चों? तो उसमें भी किंग लगा के हो जाएगा। किंग लगा के ऐड कर दोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे यहाँ π/2 है ना, तो ये तो f of sin 2x ही रहेगा ना बच्चों। Yes, अरे sir. बाबा टू प्रूव नाउ Also, but limits इसमें 0 to π/2 होगा LHS में, RHS में 0 to π/4 ना। अरे बाबा तो एक बात बता, 0 to π/2 f of sin 2x, sin x आएगा पहले, और फिर 0 to π/2 f of cos 2x और cos x आएगा बाद में, बराबर ना? सर sin 2x ही रहेगा ना, cos 2x का ये तो sin 2x रहेगा, लेकिन ये sin x plus cos x आएगा ना, equal to 2i. हाँ, इज इक्वल टू 2i हो जाएगा ना। Yes, sir. तो अच्छा, ओके, बाद में 0 to π/2 को 2 times 0 to π/4 लिख देंगे बिकॉज़ यस फिर उसके बाद में 6 प्रॉपर्टी लगा देना। हाँ सेम ही रहेगा ना? हाँ सर, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? मैं हाँ, मैं लिख रहा हूं, टू प्रूव नाउ यूज किंग कॉमा ऐड कॉमा प्रॉपर्टी 6। देखो ये तीनों चीजें, अब इतना दिमाग तो लगाना चाहिए यार, पता है इतनी, इससे ज्यादा हिंट से बात भी मत करो टीचर से। इससे ज्यादा हिंट कोई टीचर दे तो रोक दो, ठीक है ना सर, अब ट्राई करेंगे, दैट्स इट। ये यहाँ पे अब सॉल्व हो जाएगा। सर वो 0 से π/2 0 से π/4 में इसलिए होगा क्योंकि f of sin x plus π/2 cos x आ minus x जाएगा ना equal ऐड to f करने of से। x. अरे Yes, बाबा sir. ऐड करेगा तो sin x plus cos x आएगा। अब इसमें तू f of 2a minus x लगाएगा तो सेम हो जाएगा ना फंक्शन। Yes, sir. Same है. सेम होगा तो लिमिट डबल हो जाएगी, मतलब वैल्यू डबल हो जाएगी और ये π/4 आ जाएगा ना। गॉट इट? अच्छा बच्चों ध्यान से सुनो, मानो किसी स्टूडेंट को ये 10% ही समझ में आया तो क्या करेगा, अब रीट्राई करेगा इसको, यार वापस एक बार मैं खुद से ट्राई करता हूँ, 5 मिनट या 2 मिनट इस पे देता हूँ। ये जितना स्टेप्स लिखा है उसके बाद में ये जो लिखा हुआ है इसको अडॉप्ट करके देखेगा, राइट? 90% चांस बनता है कि उसको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 10% क्वेश्चन में अगर सॉल्व ना हो तो उसमें ग्रुप पे डालो कि यार स्टिल आई हैवंट गॉट द आंसर, व्हाट टू डू। कोई भी बच्चा हेल्प कर देगा, और सब बच्चे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ऐसे एंशियस रहा करो कि ऐसे सारा दिन नहीं, लेकिन जब भी कोई मोबाइल उठा करके कुछ देख रहे हो उस टाइम में अगर मिला कोई क्वेश्चन ग्रुप चैट पे तो कभी भी टाइम मिलेगा सॉल्व करके डाल दो उठा करके, भले किसी और ने ऑलरेडी डाल दिया हो लेकिन तुम भी अपना सॉल्यूशन डाल दो उठा के, लाइक दैट। इट हेल्प्स यू अ लॉट एक्चुअली, क्योंकि जो डाउट किसी बच्चे का होता है वो अच्छा क्वेश्चन होता है, इसमें तभी तो डाउट आया है ना उसको। दैट वे वी शुड थिंक अबाउट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट बताओ। ये प्रियांशु फोटो ले लो एक बार। First question. सर फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ गाइस इसमें टाइम लगता है, हाँ ये वाली जो शीट दी है ना इसमें टाइम लगता है, इसलिए टेंशन मत लेना। ऐसे नहीं कि 1 घंटा तो डाउट्स में चला गया या 45 मिनट्स डाउट्स में चला गया, जाता ही है, सारे बैचेस में गया है। और मैं रिकॉर्डिंग भेजना नहीं चाहता क्योंकि डिस्कशन अलग अलग तरह से क्लास में होता है, वरना इसका तो मैं डिस्कशन भी भेज सकता था, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग बोल रहे हो इसका -π/4 π/2 to √3a नहीं a/2 to √3a/2 a/2 to √3a/2 dx upon x plus under root a square minus
x square. Okay, now this is property 5 का first question. Okay, now done. a greater than 0 दिया हुआ है, don't forget this. a greater than 0 दिया हुआ है. अब बताओ स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों यहाँ पे? x इक्वल टू a sin theta. a sin थीटा. a sin थीटा का मतलब ये पॉजिटिव, x बाई a आएगा इधर, x a बाई 2 से रूट 3 बाई 2 का मतलब ये पॉजिटिव बच्चों से, यस और नो? अरे बाबा a Yes, पॉजिटिव sir. और x का यहाँ dx ही तो है, ये dx डाला है, इसका मतलब ये x इक्वल टू a बाई 2 से x इक्वल टू रूट 3 बाई 2 है ना? तो बताओ x का लिमिट पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव हुआ ना? यस सर। तो बताओ x बाई a पॉजिटिव रहेगा ना, sin थीटा पॉजिटिव रहता है, तो बच्चों इसके आंसर्स किधर से किधर आते हैं? प्रिंसिपल ब्रांच बोलो, 0 टू पाई बाई 2 में आते 0 हैं to ना? pi by 2. तो इसके आंसर 0 टू पाई बाई 2 के बीच में लिखने हैं. अब बच्चों x को a sin थीटा डाला तो dx कितना आ गया बताओ? a cos थीटा d थीटा. When x is equal to a by 2, तो a by 2 is equal to a sin थीटा. थीटा कितना आ गया बच्चों? pi by 6. pi by 6. When a is equal to root 3 by 2, root 3 Theta by equal 2, to pi by 3. pi by 3, come on, pi by 3, है ना? Yes sir, वही बोला. तो कितना हो गया? pi by 6 to pi by 3, ऊपर आ गया cos थीटा d थीटा, नीचे आ गया x कितना है? a sin थीटा. देखो बच्चों अगर ध्यान दोगे ना तुम लोग, तो ये a cos थीटा है, तो a लिखना भूल गए हम लोग यहाँ पे. a sin थीटा प्लस a cos थीटा बराबर है. a तो कट गया. ओके, सब कुछ कैंसिल हो गया, यही बचा कि कुछ और बच रहा है अभी आगे? बच्चों मॉड मैंने गायब कर दिया है, तुम्हें पता लग गया होगा मॉड तो गायब हो ही होएगा. हाँ सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होगा. अब तो बच्चों ये तो सॉल्व ही हो गया ना क्वेश्चन. किंग एंड ऐड, किंग ऐड आंसर, मतलब ये तो आंसर दिस प्लस दिस बाय 2 आ जाएगा, दैट्स इट. Yes sir. क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा ऐड करने. हाँ एक्चुअली ठीक है ना. तो प्रॉपर्टी 5 का फर्स्ट क्वेश्चन इजी था मेरे हिसाब से, शायद सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम आई होगी तो ठीक है, लेकिन रुक के आराम से सॉल्व करना चाहिए, चलेगा. अच्छा फर्स्ट के बाद में बताओ. फोर्थ से पहले तो किसी को डाउट नहीं है? जिसका आंसर 0 आ रहा होता है ना, उसमें डाउट किसी को होता ही नहीं है. सबको पता है कि किंग लगा के ऐड करते ही आंसर आ जाएगा. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, ओके ध्यान दो. क्वेश्चन नंबर 4 में 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x बाई 2 बराबर है ना? यही क्वेश्चन है ना? यस. ठीक है. अब ये 2 तो यहां ले जाओ और फिर इस 2 को ऊपर ले जाओ, तो यह हो गया 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स. किंग लगा दूं क्या डायरेक्ट? तुम बोलो तो. नहीं चलो. हाँ सर. सॉरी, या फिर 2 sin square x लिख के फिर उसे cos 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वो better. ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है वो भी. राइट, 2 प्लस साइन 2x. राइट गाइस, अभी अगर मैं इसमें किंग लगा के ऐड करूं, ये आई हो गया, इसमें किंग लगा के ऐड किया, तो बताओ क्या बचा? ऊपर cos स्क्वायर x आ जाएगा, ये सेम रहेगा डिनोमिनेटर से, यस और नो? यस सर. किंग एंड ऐड, किंग ऐड क्या आता है बताओ? 2i इज इक्वल टू क्या आता है बताओ? 0 टू 2 तो है ही, 2 तो रहेगा ही बात. 0 टू पाई बाई 2 से, यस और नो? dx ऊपर upon आ 2 जाएगा plus sin 2. 1 अपॉन 2 प्लस साइन 2x बराबर है ना? अब बताओ Yes, क्या sir. करोगे? 10 के टर्म्स में लिख दोगे ना इसको? यस सर, हो जाएगा. अब बच्चों इसमें नहीं, हो नहीं जाएगा, इसमें ट्रैप है एक छोटा सा, मैं बताना चाहता हूँ वो एक्चुअली तुम लोग को. बच्चों इसको 10 के टर्म्स में लिखा मैंने क्या लिखा पता है इसको? मैंने ये 2 तो कर दिया कैंसिल, और आई आ गया इसका 0 टू पाई बाई 2. और बच्चों ये कितना आएगा? 2 tan x अपॉन 1 Sir, प्लस sec squared x dx upon 2 into 1 plus tan x plus tan square x 2 into 1 plus tan x plus tan square x. प्लस tan square x.
और नहीं सर, tan square x भी ब्रैकेट में ही रहेगा। अच्छा 0 to pi by 2 है ना, ट्रैप नहीं है। tan square So x 2 भी times 1 plus tan square. 1 plus tan square x। सॉरी बच्चों, सॉरी और मैं 2 एक्चुअली, tan x भी होगा ना सर? अरे 2 times 1 plus tan square x, ये 2 tan x ही आएगा ना। हाँ सर, वो पूरा ही ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है चलेगा। अभी 10x को t ले लेंगे बच्चों। सॉरी हाँ, मैं थोड़ा दिमाग मेरा कहीं और ही चल रहा था एक्चुअली, इस वजह से मैंने बोला कि इसको मुझे सॉल्व करना है। एक्चुअली सोचो, अगर ये लिमिट 0 to pi होती, यहाँ पे 0 to pi by 2 की जगह में बच्चों 0 to pi होती, तो क्या तुम 10x को t डाल सकते थे? सर इंटरवल ब्रेक करके डाल सकते थे ना? हाँ बच्चों 0 to pi, जरा ध्यान दो सब लोग इस चीज पे ध्यान दो। मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया, सिर्फ वेरीफाई कर दो। अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है 1/1 plus x square, सेम एग्जांपल मैंने शायद सिखाया तुम लोग को, दिस इज इक्वल टू i, राइट, dx। बच्चों यहाँ x को मैं 1/t डालता हूँ एक बार, है ना, x को 1/t डाल देता हूँ, तो i कितना बन जाएगा बच्चों? -1/t स्क्वायर dt, तो ऊपर आ गया, बराबर है, मानते हो? एक्स्ट्रा ये, और नीचे कितना आएगा? t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, मानते हो? ये dt चला ही गया, t स्क्वायर ओवर हो ही गया, राइट, और ये भी i है, तो dx में ये आ गया और ये आ गया। तो बच्चों तुम्हें नहीं लग रहा i इज इक्वल टू माइनस आई आ गया? सोचो, बताओ ना, i इज इक्वल टू माइनस आई आ गया ना बच्चों? यस सर। i इज इक्वल टू माइनस आई मतलब आने का मतलब क्या हुआ? I equal i to इज इक्वल 0. टू 0 हो गया ना। 0। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यही तो ग्राफ बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर के ग्राफ को 1 यूनिट से ऊपर खींच दो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बनता है ना, ये इसको 1 यूनिट से ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ, बराबर ना। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों, इसका ऑपोजिट रेसिप्रोकल ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। बनाया है ना इस तरह के ग्राफ तो हम लोगों ने, बताओ पहले। Yes sir. बच्चों एक बार बताओ, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर 0 आ सकता है क्या? अरे बाबा एक बात बताओ, ये जो फंक्शन तुमने लिखा है ये पॉजिटिव रहेगा, से यस और नो? एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा ना। जब इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आ सकता और 0 नहीं आ सकता, गारंटीड पॉजिटिव ही आएगा, बराबर ना। यानी मिस्टेक इज देयर। बच्चों क्या मिस्टेक है पता है? x इक्वल टू 1/t जब लिखेंगे तो तुम्हारा ये जो फंक्शन है ना बच्चों, ये वाला फंक्शन, ये वाले फंक्शन में ये सब्स्टिट्यूशन अलाउड ही नहीं है एक्चुअली, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बताओ है कि नहीं? अरे t इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ना बच्चों। t इक्वल टू 1/x करोगे तो x इक्वल टू 0 तो इसके ड्यूरेशन में नहीं आता है ना। Yes sir. आप याद करो, हम लोगों ने बोला था कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन रहा है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब सेम सब्स्टिट्यूशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? तो -1 से 0 और 0 से 1 ब्रेक करना चाहिए। यस एक्सेलेंट, -1 से 0 और 0 से 1 में ब्रेक कर देना चाहिए, फिर ये सब्स्टिट्यूशन से करेक्ट आंसर आएगा। इसका आंसर 0 नहीं आएगा, बराबर। अदरवाइज बच्चों तुम्हें पता ही है ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा, बराबर है ना। tan इनवर्स x होता है ना इसका इंटीग्रल, यस सर। tan इनवर्स x इंटीग्रल होता है तो इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा, बराबर है। किसी को डाउट है इसमें? सो ब्रेक करके एक टाइम लाइक नहीं समझा फिर से करेंगे। अरे बाबा ये 0 डिसकंटिन्यूअस है, तो अपन इतने सारे क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे बताओ? ऐसे तो कर रहे थे, -1 to 0 और 0 to 1। अब x को 1/t डालोगे, 1/1 plus x square plus 1/1 plus x square। नाउ x को 1/t डालोगे, इवन फंक्शन करके दोनों को इक्वल तो कर ही सकते हैं। अरे बाबा ठीक है ना, वो भी ठीक है, इवन फंक्शन कर देगा 0 to 1, फिर सब्स्टिट्यूशन से भी आंसर आ जाएगा। और लिख देता हूं मैं तेरे लिए, और बच्चों ये भी कर सकते हो, 2 times 0 to 1, 1/1 plus x square, right? Now put x equal to 1/t। सर तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी ना। हाँ तो लिमिट चेंज हो जाएगी, वही तो मैं कह रहा हूं। अरे बाबा यहाँ पे x इक्वल टू 1/t डाल रहे हो तो लिमिट चेंज नहीं हो रही है ना, -1 to 1 ही रह रही है ना लिमिट, लेकिन यहाँ तो चेंज हो जाएगी ना।
अब लिमिट चेंज हो जाएगी तो सॉल्यूशन भी करेक्ट आएगा ना, इसका पॉजिटिव ही आएगा ना आंसर। डालू क्या x इक्वल टू 1/t हो जाएगा ना, नहीं सर अभी हो जाएगा समझा। बराबर ना। अच्छा और तो तुम्हें पता ही है, और डायरेक्ट फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये वाला क्वेश्चन 0 to 2 पाई ब्ला 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 dx, अगर मैं sin x को t डालूं बच्चों, राइट, तो देखो एक रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन इंडिकेशन जा रहा है ना। यस सर, बिकॉज 0 से 0 जगह देना। तो बच्चों 0 से 0 ही लिमिट हो जाएगी ये तो, है ना। कोई भी फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, मानो स्क्वायर की टर्म्स में लिखा हुआ है, और 0 to 0 अगर लिख दोगे तो इसका आंसर 0 आना ही आना है हर हालत में। मतलब सारे दुनिया के सारे क्वेश्चंस में इसका आंसर 0 ही आएगा, अंदर कुछ भी छाप दो, अगर sin x यहाँ t डालोगे तो इसका आंसर 0 ही आना है। इज इट करेक्ट? इट्स नॉट करेक्ट, बराबर है ना बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, जरा सोचो, एक नोट क्या डालना चाहिए हम लोग को, कि हम लोग जो भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, बच्चों सब्स्टिट्यूट क्या किया बताओ। यहाँ पे x इक्वल टू 1/t लिखा, राइट। तो ये जो x लिखा है बच्चों, ये जो x लिखा है, इस x को -1 और 1 के बीच में, x को -1 और 1 के बीच में के लिए जो अंदर वाला फंक्शन है वो नहीं, x को कंटिन्यूअस होना चाहिए। -1 और 1 के बीच में जो सब्स्टिट्यूशन किया है, दैट सब्स्टिट्यूशन शुड बी कंटिन्यूअस फंक्शन। दिस सब्स्टिट्यूशन इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। व्हिच फंक्शन? x इक्वल टू 1/t इज नॉट कंटिन्यूअस इन -1 to 1, 0 पे डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार वापस समझा सकते हो क्या? मैं बोल रहा हूं जो भी सब्स्टिट्यूशन करो, उस सब्स्टिट्यूशन को गिवन लिमिट्स में कंटिन्यूअस होना चाहिए। x इक्वल टू 1/t इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देखो ना उधर, देखो ना, -1 to 1 ही तो है x को 0 डालोगे तो बताओ t क्या निकलेगा? डिसकंटिन्यूअस दे देगा ना, इंफिनिटी दे देगा ना, बताओ। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर समझ में आया तो यस को, नहीं समझ में आया तो वापस पूछो। वापस 10 बार पूछना कोई क्राइम नहीं है, समझ में नहीं आएगा तो पूछना ही पड़ता है। जो भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं उसमें हम दो बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखते हैं। जो सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है x और t की टर्म्स में, दो ही तो टर्म्स है यहाँ पे, एक x है और एक t है, बराबर है। जैसे यहाँ पे एक x है और एक t है, sin x मत देखो, एक x है और एक t है, ऐसे दो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हमेशा दो वेरिएबल इंटरचेंज होते हैं, राइट। अब वो इंटरचेंज होते टाइम में तुम्हें डिसकंटिन्यूटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए गिवन लिमिट्स में। जैसे यहाँ पे x को 1/t रखते टाइम में x -1 और 1 के बीच में t इंफिनिटी दे देता है, बताओ देता है कि नहीं देता है? x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया ना फंक्शन, बीच में नहीं होना चाहिए। और बच्चों साथ में फंक्शन को 1 1 भी होना चाहिए। मैं लिखूंगा इसको नेक्स्ट बोर्ड पे। सब्स्टिट्यूशन में ऐसे स्टार मार्क किया, एक तो x इक्वल टू 5 रखते टाइम में, मैं x को या 5 के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, राइट। ये तुम लोग को डिसाइड करना है उस टाइम में कि किस बारे में सर बात कर रहे थे। मैं बोलता हूं कि एक तो कंटिन्यूटी का ध्यान रखना है, और दूसरा क्या ध्यान रखना है बच्चों? 1 1 होना चाहिए, 1 1। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, 0 to 2 पाई लिमिट में अगर तुम sin x को t लिखते हो तो x को sin इनवर्स t लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बताओ। यस सर। यस सर। तो ये तो गारंटी हो गई कि x का वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में ही आएगा। मतलब t की किसी भी वैल्यू के लिए x -π/2 और π/2 के बीच में ही होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे। है क्या बताओ बच्चों, है क्या? नहीं सर। यानी ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना बच्चों, इसको वर्क करने के लिए इधर जो लिमिट्स लिखी हैं उसको कैसा होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। अरे बाबा एक बात खुद से सोचो कि अगर ये 1 1 नहीं है, मनी 1 है, तो sin x को t डालते टाइम में t का कोई भी एक वैल्यू के लिए x का तो इनफाइनाइट वैल्यूज आता है ना, लेकिन अपने को x का कौन सा वैल्यूज लेना होता है बच्चों? -π/2 और π/2 के बीच में लेना होता है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड माय पॉइंट बच्चों? अच्छा तुम ये बताओ, चलो इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछता हूं।
तुम्हें पकड़ में आया कि नहीं आया कि यहाँ पे ये sin x इक्वल टू टी इज द रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन? हाँ सर, लिमिट सेम हो रहा है ना। हाँ, अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को 0 टू π/2, π/2 टू 3π/2, 3π/2 टू 2π बना दूं बच्चों, आई रिपीट, sin x का ग्राफ पता है ना, यही तो ग्राफ बनता है। 0 टू π/2 बनाया बच्चों ये वाला ग्राफ, बताओ कोई वैल्यू रिपीट हो रही है? नो अरे बाबा सर, 0 से 2π में रिपीट हो रही है, क्योंकि t की वैल्यू 0 से 0 आ जाती है। बताओ 0 से π/2 अगर ग्राफ लूं, मतलब इस लिमिट को ब्रेक करूं मैं, 0 टू π/2, π/2 से पाई, नहीं π/2 से कितना बच्चों, π/2 से कहां तक जाएगा, π/2 से ये कितना है, 3π/2 है ना, यस सर। 3π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से कितना बच्चों, 2π। अब बताओ रिपीटेशन होएगा क्या? नहीं होएगा ना बच्चों। बताओ क्या किया मैंने, इस sin x का मैंने क्या किया, जो सब्स्टिट्यूट किया है उसको मैंने क्या किया, ये जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको x की इन वैल्यूज के लिए जो यहां लिखी हुई है, इसको 1 1 होना चाहिए, यानी स्प्लिट करने के बाद t सब्स्टिट्यूट करना चलेगा, स्प्लिट करने से पहले सब्स्टिट्यूट करना नहीं चलेगा बच्चों। ये एक्चुअली ये कंटेंट हम लोग लास्ट में करते हैं, आई रिपीट लास्ट में करते हैं, ये वाला कंटेंट जो अभी कर रहे हैं ना वो लास्ट में करते हैं। आप याद करो, आपको इसमें इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 दी हुई है, जो मैंने अभी तक होमवर्क में आपको दिया नहीं है ना, डेफिनेट में किसी ने मॉड्यूल अगर देखा होगा तो उसको इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 मिली होगी उसमें, से यस और नो गाइस? मॉड्यूल देखा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता हम लोग को, है ना? सर सिर्फ 2b और 3 सॉल्व किया है। अरे 2b और 3 तो इंडेफिनिट के लिए सॉल्व किया है, लेकिन अगर मॉड्यूल तुमने देखा हो इन चैप्टर एक्सरसाइजेस वाला, जो कि जनरली हम लोग नहीं देखते हैं, राइट, तो बच्चों एक चीज नोटिस किया होगा कि मॉड्यूल में इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 के बाद डेफिनेट का इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 है, और वो इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का मतलब 4th हो गया, वो इन चैप्टर एक्सरसाइज 4, राइट। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए नहीं, मैंने बोला छोड़ो अभी इसको, सॉरी उसको छोड़ देना, अभी उसको करना नहीं, ओके। अच्छा, और ये जो मैंने कराया है ना बच्चों, इस वाले बोर्ड पे, इस वाले बोर्ड पे जो जो चीजें कराई है वो तुम्हें इतना पकड़ में आना चाहिए, हाँ यार हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं यार, x को 1/3 डालना उधर गलत है, राइट। तो बच्चों कंटिन्यूटी का ध्यान रखना चाहिए सब्स्टिट्यूशन में, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, जो ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो ना 0 टू 2π में x को sin t डालना, राइट, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। 0 टू π/2, π/2 टू 3π/2 और 3π/2 टू 2π, ऐसे करके सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। अदरवाइज बच्चों एक सरल तरीका क्या है पता है तुम लोगों को? सरल समझते हो नहीं समझते हो? सरल इज अ हिंदी वर्ड, सिंपल। हाँ सर, सिंपल। सिंपल। A best method to solve such questions where you are unable to find out a good substitution, you should solve that question using substitution using indefinite, क्योंकि प्रॉपर्टी तो लगानी नहीं है वहां पे। अरे प्रॉपर्टी लगा के तो फिर दिक्कत ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट क्या कर रहा है, नहीं करना है कुछ भी, राइट। जहां से इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करना है बच्चों, वहां से पता है क्या करो, लिमिट को भूल जाओ, एक बार लिमिट भूल ही जाओ कि लिमिट क्या है, इंडेफिनिट की तरह क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो, पूरा एकदम पूरा। और बच्चों जब पूरा सॉल्व हो जाए ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ में, तब दोनों तरफ बॉक्स लगा के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, क्वेश्चन के गलत होने के चांस ही नहीं है, ना तो x = 1/t सब्स्टिट्यूट करके गलत होगा और ना ही किसी और तरह से गलत होगा बच्चों, किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड माय पॉइंट बच्चों? सर हाँ बोलो। तो आपने ये जो राइट में इतना सारा लिखाया है, उसका मतलब यही था ना कि x = 1/t नहीं डाल सकते, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं? हाँ ओके सर, डायरेक्टली भी कर सकते हो, इंडेफिनिट से सॉल्व करो, फिर फाइनल आंसर जो आता है उसके ऊपर लिमिट्स लगा दो उठा करके, खत्म। tan इनवर्स x/a हो जाएगा ना सर यहाँ पे x को कंटिन्यूअस और 1 1 होना चाहिए या t को? देखो ये चीज मैं जो है ना, मैं जनरली तुमने वो लोगों ने मेरा टीचिंग स्टाइल नोटिस किया होगा कि मैं कुछ चीजें जो ना आपके ऊपर बर्डन छोड़ के जाता हूं हमेशा, बराबर ना। अरे यार क्या है यार, सर बताएंगे तो 1 ही मिनट में बता देंगे, अपन को माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो मतलब x को 1 1 होना चाहिए कि t को 1 1? नहीं, दोनों को नहीं, sin x को 1 1 होना चाहिए, बराबर ना।
अरे वहां तो x को 1/t लिखा है क्योंकि x को ही सब, अब यहाँ x की जगह मान लो 10x होता तो 10x फुटी डालता तो 10x को कंटिन्यूस होना चाहिए था ना, यस सर। बराबर। तो जो सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं उसको कंटिन्यूस होना चाहिए और उसको 1 होना चाहिए, बराबर। लेकिन बच्चों मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, अगर कहीं देखो एग्जाम में फंसने के प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आपको लगे कि ये फंसने वाला प्रॉब्लम, देखो प्रॉपर्टी लगानी है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगाने के बाद इंटीग्रेट करना है तो रफ पेज बहुत सारे मिलते हैं, राइट। रफ पेज में उठा करके इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करो और एंड में जाके b माइनस ए प्रॉपर्टी लगा दो, खत्म कहानी, इधर से उधर आगे जाना ही नहीं है। तो गलत होने के चांसेस जीरो हो गए, फिर ये जो ध्यान रखना है ना वो चांसेस जीरो हो गए। पर बच्चों आई अवॉइड दैट एक्चुअली, फॉर गुड स्टूडेंट्स आई ऑलवेज से सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट चेंज करो, फिर सॉल्व करो, तो मजा आएगा, मतलब कुछ सीखने को मिलेगा, और वो सीखा हुआ ही काम आता है आईआईटी में, समझ लो एक चीज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सर अब और दोनों में से क्या इंडेफिनिट, डाउट, हाँ बोलो बेटा। सर और इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करेंगे तो टाइम भी शायद थोड़ा ज्यादा लग सकता है ना, क्योंकि 100% प्रॉपर्टीज। टाइम ज्यादा लगता है, बिल्कुल। सब्स्टिट्यूट करने के बाद लिमिट चेंज होती है, और लिमिट चेंज होने के बाद कभी कभी किंग विंग कुछ प्रॉपर्टी लगती है ना, तो जल्दी से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। यस सर। हाँ, तो मेरी एडवाइस तो यही है कि लिमिट सॉल्व करना सीखो। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बच्चों, एक बात बताओ, हम लोग तो सब साथ में जे एडवांस तक अब, राइट, तो हम लोग का तो कोई डिस्टेंस रहेगा ही नहीं। अब ज्यादा से ज्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फंसोगे, गलती करोगे, ग्रुप पे आएगा, ग्रुप पे की भी किसी से सॉल्व नहीं होगा, तो मैं तो बोर्ड पे आने ही वाला हूँ, वहां डिस्कस कर लेंगे। लेकिन स्ट्रगल तो करोगे ना क्वेश्चन के साथ में, बराबर है ना। तो गलत होने के चांसेस सिर्फ एक ही जगह है, जब तुम स्ट्रगल बंद कर दो अपना कि नहीं मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं तो इंडेफिनिट से करके लंबा चौड़ा घिस देता हूँ इसको। गलत नहीं है वैसे वो टेक्निक, थोड़ी सेफ टेक्निक है, बट स्टिल आई बिलीव कि उससे आईआईटी जाने में हो सकता है तुम लोग को फायदा हो जाए। ये जो ना ये ऐसा रहेगा, वहां जाके फिर मैकेनिकल मिलेगी या कुछ मिलेगी, वहां रोते रहोगे, राइट। डोंट डू दैट, ऐसे ही करो, ठीक है। चलो प्रियांशु फोटो। So in the first question you given I equal to 0 is wrong ना? हाँ i equal to 0 रॉन्ग, ये लो लिखता हूं रॉन्ग, ऑब्वियसली है ना, पता है ना ऑब्वियस क्यों लिखा, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है तो आई का वैल्यू 0 आ ही नहीं सकता, बराबर है ना बच्चों। Sir, I took the screenshot. हाँ प्लीज। हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉपर्टी 5 का क्वेश्चन नंबर 4। ये सब एक्स्ट्रा थियरी का पार्ट था बच्चों, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी 5 करके हम लोग निपटा रहे, थियरी वाला पार्ट भी कुछ कुछ बीच में कवर कर रहे हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ, 4 के बाद कोई डाउट? सर 11 11 से पहले कोई डाउट है किसी को? अच्छा उसके बाद सिंपल से क्वेश्चन है। अरे यार ये जो 11 वाला क्वेश्चन है ना, अभी क्या ही बताऊं, घिसाई है घिसाई, हो गया होगा वैसे बहुत लोगों को ये। -π to π p and q belongs to integer। सर 10th में भी डाल, 10th भी करना है क्या? 10th तो वो प्रोफाइल हो गई ना f of sin 2x वाली। ओके सर। किंग एंड प्रोफाइल याद आ रहा है, किंग के बाद वो प्रोफाइल लगाते थे f of sin 2x sin x plus minus cos x वाला। लिखूं क्या, लिख दूं क्या एक बार? क्वेश्चन नंबर 10 में किंग एड प्रोफाइल, कौन सी प्रोफाइल पता है? इंटीग्रेशन sin x plus cos x into f of sin 2x। कर लोगे ना अभी? 10th के बाद 11th किसी ने पूछा है, तो 11th जो पूछा है उसके पीछे लॉजिक जो है मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। -π to +π, -π to +π cos px सॉरी cos px minus cos qx का होल स्क्वायर sin qx। whole square pq belongs to I।
है ना? ये है बच्चों क्वेश्चन। तो आप मुझे एक चीज बताओ, पहले तो उसको ओपन कर दो। ओपन नहीं भी करो तो फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ये इवन फंक्शन है कि नहीं है मुझे बताओ। So neither even nor odd, but like Yes. add करने से तो squares का वो हो जाता है, like sum of two squares आ जाएगा ऐड करके, किंग लगा के। मतलब इसी में मैं किंग लगाऊं, तुम लोग बोल रहे हो किंग लगा दो इसमें, राइट? Yes sir, तो ब्रैकेट cos px plus sin px हो जाएगा। माइनस पाई टू प्लस पाई कॉस पी एक्स प्लस साइन पी एक्स साइन क्यू एक्स होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर पी एक्स प्लस साइन स्क्वायर, नहीं, टू कॉस Yes, sir, स्क्वायर two पी एक्स times. प्लस टू टू हाँ साइन तो स्क्वायर, तो 2 yes, sir. cos तो px 2 sin px। कैंसिल हो जाएगा, आई को डायरेक्टली लिख सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स। आई इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर पी एक्स प्लस साइन स्क्वायर क्यू एक्स टी एक्स, ये बच गया। अच्छा ये तो इंटीग्रेट किया हुआ है ना हम लोगों ने बहुत बार, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस पाई टू प्लस पाई है ना, तो इसको 0 टू हाँ, पाई बाई sir. टू लिख दूं क्या? तो 0 to pi So और 4 ऊपर times हो 4 जाएगा। टाइम्स, राइट? अब जो पाई माइनस एक्स लगाओगे तब भी सेम आएगा ना, यस सर। तो इसको 0 टू पाई बाई टू कर दूं क्या? 0 टू पाई बाई टू 8 टाइम्स, बताओ बराबर है क्या? हाँ सर, या फिर cos square px को 1 plus cos 2px by 2 करके भी आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन इजी हो गया, मतलब अब तो डायरेक्ट इंटीग्रेट sir. कर दोगे तो हो जाएगा ना। जिसने पूछा उसको समझ में आया कि नहीं आया वो जरूरी तो है। अभी बस डबल एंगल करना है ना बस, और हाँ क्या? बस ट्वाइस एंगल करके सॉल्व कर दो, ठीक है? Understood, sir. ओके डन गाइस, डन दो। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, 11 के बाद कौन सा है बच्चों? एक ही डाउट था, 13 का हिंट ऑलवेज करेक्ट है। हाँ हाँ यस ऑलवेज करेक्ट है, वाइस वर्सा करेक्ट नहीं है बच्चों। इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होता है, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है, लेकिन इवन फंक्शन का इंटीग्रल ऑड होता है और ऑड फंक्शन का इंटीग्रल इवन होता है। दोनों में से एक करेक्ट है एक रॉन्ग है, अब सोचना खुद, नहीं पकड़ में आएगा तो मुझे नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, ओके ठीक है? ओके 14। हाँ सर, एक टाइम वो 14 का वो हिंट के साथ कैसे करेंगे वो बता सकते हो? अच्छा यूजिंग किंग वाला पार्ट क्या? ओके हाँ अच्छा सर, 14, so because split करके तो आ गया, बट लाइक वो हिंट का ठीक क्या है यूज मैं बता देता हूँ। i इज इक्वल टू पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू बॉक्स साइन 2x बॉक्स साइन x 2 साइन x 2 sin dx। तो ध्यान दो इस क्वेश्चन में मैं पहले किंग लगाऊंगा तो ये a प्लस बी कितना आ रहा है बता सकते हो? 2 पाई 2 पाई आ रहा है ना, तो किंग लगाया मैंने, किंग लगाया तो कितना बन गया बच्चों? पाई बाई टू 2 3 पाई बाई टू और किंग लगाया तो कितना आ गया? -2 sin बॉक्स माइनस 2 साइन x, ये आएगा ना यस sir. सर। बच्चों। पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू साइन x का ग्राफ ऐसा होता है ना, ऐसा ये वाला ग्राफ बनता है ना, ये वाला ग्राफ, ये 2 आ जाएगा, सॉरी ये 2 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा, ऐसा ही बनता है ना 2 साइन x का ग्राफ बच्चों, 2 साइन x का ग्राफ बराबर ना बच्चों। इस पूरे इंटरवल में ये दो ही जगह इंटीजर बनता है बस। 5 5/6 हाँ सर, 3 जगह रहे तो 3 हो बनता जाएगा है। ना। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, इन तीनों जगह पे अगर मैं इस फंक्शन को ब्रेक कर दूं तो उस ब्रेक किए हुए डॉट का इंटीग्रल तो 0 होगा ना, हाँ सर। राइट? अब मुझे बताओ नॉन इंटीजर वैल्यूज पे क्या होगा? अगर ये नॉन इंटीजर है बच्चों, अगर ये नॉन इंटीजर है, इफ इट इज नॉट बिलोंगिंग टू आई, नॉट बिलोंगिंग टू आई, सो दिस इज आल्सो नॉट बिलोंगिंग टू आई हो जाएगा। से यस और नो? यस सर। अब बच्चों बताओ बॉक्स x प्लस बॉक्स माइनस x -1 होता है कि नहीं होता है नॉट बिलोंगिंग टू इंटीजर्स के लिए? यस सर। बच्चों यही होता है ना? अरे बाबा इंटीजर्स के लिए तो वैसे भी आंसर 0 ही आएगा, तो 0 + 0 + 0 कर देंगे हम लोग चाहेंगे तो, लेकिन
इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यूटिलाइज करूं तो ये वाला आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा बताओ? -1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो बताओ 2i कितना हो गया? -1 dx हो गया ना, π/2 to 3π हो गया sir. हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व? बराबर है? किसने पूछा था? सॉल्व हो गया क्या? हाँ सर समझा. सो ऐसे नॉर्मली Sorry, स्प्लिट करके भी आपने- कर सकते हैं ना? हाँ कैसे? स्प्लिट करके नॉर्मली अरे इंटीजर्स ठीक को है ना, स्प्लिट. तो हो ही जाएगा, तो सब बच्चों ने कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से, है ना? सर आपने यहाँ पर सिर्फ ये यूज किया कि इंटीजर का बॉक्स और उसका नेगेटिव का बॉक्स दोनों मतलब ऐड करने पे 0 है. 0 नहीं होता है. हाँ, इंटीजर में वो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तो एनीवे Yes, आंसर sir. 0 आएगा. ठीक है, करूं? चलो आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 14th भी हो गया, अब तो 2-3 ही बचे हैं, तो इसमें क्या ही डाउट होने वाले हैं. 15th क्लासरूम एग्जांपल है. 16th रिपीट हो गया. रिपीट ही हो गया ना 16 तो. यस सर. यस हाँ सर. और 17th किंग लगा के ऐड करते ही सॉल्व हो जाएगा. बराबर है? यस सर. यस सर. यही So, 99 में 3 मार्क्स से स्क्रीनिंग का क्वेश्चन हो सकता है ये. ठीक है. सो वो वैसा ही सिमिलर एक क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था. हाँ ठीक है बच्चों, तो बस डाउट तो इतना ही था ना, और कुछ थोड़ी था. इसका प्रियांशु इसका एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. ये लेक्चर बच्चों बड़ा डाइसी लेक्चर होता है. मतलब इसमें कोई बच्चा पार्टिसिपेट ना करे और रिकॉर्डिंग देखे तो फिर क्या ही है उसका. 2-3 महीने बाद उसको खुद ही पता लग जाएगा मैं कहीं गलत रास्ते में भटक गया था और अब वापस लौट नहीं सकता. तो डाउट सेशन जब भी होता है, स्पेशली रूटीन डाउट सेशन, एक तो होता है अलग से डाउट सेशन, लेकिन रूटीन डाउट सेशन को कभी रिकॉर्डिंग में नहीं जाना चाहिए, उसको हमेशा डिबेट्स में जाना चाहिए. कैन आई रेज प्रियांशु? यस सर. अच्छा, 6th प्रॉपर्टी में हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए थे? एक ही क्वेश्चन किया था ना सर? एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन. एक एग्जांपल ये वाला कर लिया था क्या मैंने? 0 to 2 में x cos क्यूब x sin 4x, ये कर लिया था क्या? हाँ सर. Yes, ये sir, तो ये हो लास्ट गया. सब वीडियो. हाँ क्या बोल रहा है बेटा? मतलब ये सबसे लास्ट सम था जो किया था वो. हाँ ये, लेकिन इसका ये कर लिया था ना हम लोगों ने. हाँ सर. अच्छा अच्छा, सब लोग ध्यान दो एक क्वेश्चन पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस. सॉरी टू राइट दिस, राइट, बट बोर्ड्स में इस क्वेश्चन की बड़ी इंपॉर्टेंस है. वैसे सॉल्यूशन इसका जो प्रूफ है ना, ये बहुत पूछता है. एनसीईआरटी में तो बहुत ज्यादा पूछता है. ठीक है. और दूसरी तरह से इंपॉर्टेंट कैसे है, इसका रिजल्ट बच्चों बहुत क्वेश्चन में, मतलब 25 क्वेश्चन कम से कम बुकलेट में ऐसे हैं जिसमें इसका रिजल्ट डायरेक्टली यूज होता है. डायरेक्टली यूज होता है, मतलब अपने को सॉल्व नहीं करना होता है, डायरेक्ट यूज करते हैं उसको. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 मुझे ही करना है, मतलब मुझे तुमसे नहीं करवाना है. 0 to π/2 ln sin x dx is equal to 0 to π/2 ln cos x dx. इसका वैल्यू बच्चों -π/2 ln 2 होता है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, है ना. कैसे प्रूव करना है बच्चों? ये i ले लो इसको. अब इसमें किंग लगा दो एक बार. बताओ i क्या बन गया बच्चों? इसकी बात कर रहा हूं. ln cos x बन गया ना. सब लोग अलर्ट रहो और साथ में पढ़ो. क्लास में पढ़ने का मजा क्या आता है पता है? मैंने नोटिस किया कि मैं जब वो पेन बोर्ड पे कभी कभी बीच में मैंने 1-2 लेक्चर्स लिए हैं, मैं नोटिस किया कि उस पे जब मैं क्लास लेता हूँ ना तो मैं खुद ही लेथार्जी हो जाता हूँ. जैसे अभी कभी उठ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, कुछ जगह में डांट रहा हूँ तो एक्सप्रेशंस पकड़ में आते हैं स्टूडेंट्स को, है ना. और वहां जब क्लास ले रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि मोनोटोनस सा कुछ चल रहा है. बच्चे ही लोग बोलते हैं सर मत लो ना इधर प्लीज, जब आपका मन नहीं हो क्लास लेने का तब उधर ले लिया करो. मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है. मन नहीं होता है तो मैं बोल देता हूँ मन नहीं है क्लास लेने का, लेकिन उस मजबूरी के कारण से कभी कभी लेना पड़ा. मैंने शायद पूरे साल में 1 या 2 लेक्चर ही इस तरह का लिया है. तुम्हारा तो शायद कभी भी नहीं हुआ है. हुआ है क्या? नो सर. तुम्हारा तो इसी पे हुआ है ना लेक्चर हमेशा. हाँ सर. हाँ तो एक एक्सपीरियंस करते हैं नेक्स्ट टाइम. देखते हैं उधर पे वो बैठा नो रहता सर, है. नो सर. नहीं सर.
नहीं वो तो मैंने लिया। रिकॉर्डिंग देखी थी एक नहीं। अच्छा रिकॉर्डिंग थी क्या उसकी कुछ? अच्छा किसी और बैच की सर आपने रिकॉर्डिंग एक थी? सेंड किया था ये डेफिनेट का, तो वो अरे कभी तक हाँ, देख वो लिया था। गलती से किसी और बैच का सेंड हो गया था, फिर मैंने री रिकॉर्ड करके, मतलब उसको री अपलोड कर, रीलोड करके और वापस तुम लोग को भेजा था। शायद डाउट सेशन का कुछ था चक्कर जब ये हाँ था। सर, तो आपने वो रिकॉर्डिंग में जो ऊपर ऊपर से दिखा पसंद ही नहीं आया। वो मोनोटोन सा हो जाता है। तो जो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा पता है? ln sin x cos x ये आएगा ना? अरे वो ln a प्लस ln b आ जाएगा ना बच्चों। तो फिर sin 2x/2 और फिर उसके आगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना इसको, देखिए कितना बन जाएगा 2i इज इक्वल टू। सब बच्चे ध्यान दो, मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेट करो। बड़ी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत काम आता है, बोर्ड में भी काम आएगा। तो इस क्वेश्चन को इग्नोर क्यों करने का, राइट? बच्चे कितना बन गया बता सकते हो क्या मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद? ln sin 2x/2 बाई 2 को तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, ऐसे डायरेक्ट यार कितना मेहनत कराओगे? 0 to π/2 ln 2 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस। अरे बाबा यहाँ 2 आएगा, फिर ln 2 लिखेंगे माइनस में, तो उसको अलग से इंटीग्रल में लिख दिया। ठीक तो है, फिर अब उसे sin x सुनो ना लिखना बच्चों, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, ध्यान 2a से माइनस सुनो। x। तू बोल मत प्लीज, ध्यान से सुनो बच्चों। बताए यहाँ क्या चक्कर है, इस जगह में क्या चक्कर है? इस जगह में अगर तुम ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज करते हो, आई रिपीट, अगर तुम ये प्रॉपर्टी इस जगह में यूटिलाइज करते, मतलब डायरेक्टली यूटिलाइज करते हो, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हो, तो इसका आंसर कितना आता है पता है? -π/2 ln 2 आ गया ना, दिख ही रहा है ना, माइनस साइन ये और π/2 ln 2। तो बच्चों तो आंसर आ गया, 2i का आंसर ही आ गया। इसका मतलब इसको क्या बनना चाहिए बच्चों? 0। 0। देखो पता है, -π/2 ln 2 I sir -π/4 ln 2। तो आंसर -π/4 ln 2। अगर ये 0 बन गया ना तो बैंड बच जाएगी, आंसर चेंज हो जाएगा। इसको 0 नहीं बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए? -π/2 ln 2 आई बनना चाहिए, आई। ये 2i और ये i और ये आंसर, तो 2i माइनस आई आई हो जाएगा ना? क्या बोलते हो? यस सर। नहीं इसको समझेगा, आई वापस बना। बताओगे? अरे बाबा ये वाला पार्ट जो मैंने ऐसे थोड़ा डेडली अंडरलाइन किया है, उस पार्ट को मैं आई प्रूव कर दूं कि ये भी आई ही है, तो 2i इज इक्वल टू आई माइनस π/2 ln 2। तो बताओ आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस आ जाएगा, तब आ जाएगा। है ना? तो बच्चों फिर एक काम करते हैं ना, इसको i1 ले लेते हैं ना। लेट i1 इज इक्वल टू 0 to π/2 ln sin 2x dx। बच्चों 2x को t ले लो। क्यों ले रहे हैं t, ये तो पता है तुम्हें भी, क्योंकि ln sin t चाहिएगा ना, इसलिए। तो बच्चों x हो जाएगा, dx हो जाएगा कितना, dx हो जाएगा कितना, dt/2। ये हो जाएगा कितना, i इज इक्वल टू 1/2 0 to π/2 और 0 to π। हाँ यार गलती हो गई भाई, माफ कर दे। 0 to π और ये हो जाएगा ln sin t और ये हो गया dt, बराबर ना? सर i1। हाँ बराबर। अरे यार ये ले आएगा। अच्छा मुझे तो लगता है क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। 6 प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो। f ऑफ π माइनस x कितना आ रहा है बच्चों? f ऑफ π माइनस x नहीं होगा, f ऑफ π माइनस t होगा। बताओ f ऑफ t आ रहा है? यस आ रहा है ना? तो बताओ i1 को क्या लिखूं? i1 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 2 टाइम्स इंटीग्रल की वैल्यू डबल। और बच्चों क्या थी प्रॉपर्टी? 0 to π/2 ln sin t। ln sin t dt हो गया क्या प्रूव? यस सर, i1 equal to i। i1 equal to i। this implies 2i is equal to i minus π/2 ln 2। क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही लिखना पड़ता है तो मैं पूरा ही लिख के दे रहा हूं तुम लोग को। i is equal to, this implies i is equal to minus π/2 ln 2। बच्चों यहां से एक और कन्वेंशनल प्रॉपर्टी पकड़ में आ रही है, अगर तुम लोग ध्यान दो, राइट? उसको मैं बॉक्स में लिखूंगा। और वो क्या पकड़ में आ रही है पता है? 0 to π/2 में ln sin x का वैल्यू ln cos x का वैल्यू और ln sin 2x का वैल्यू।
बच्चों सारी वैल्यूज ही -π/2 ln 2 है ना? बोलो क्या बोलते हो? यस समझ में आया क्या ये? यस सर। बच्चों हाँ इसको सर। डायरेक्टली यूज करना है। आई रिपीट, इसको डायरेक्टली यूज करना है क्वेश्चंस में। अब हम लोग इसको प्रूव नहीं करेंगे कभी भी, आज प्रूव हो गया, अब आगे से इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हेलो राइट? सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पर हम लोग जब प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे तो फिर लॉन के अंदर 0 आ जाएगा। कैसे बता? सर ln sin 0। कैसे? a + b - x यहाँ लगा रहा ना प्रॉपर्टी, a हाँ + सर। b - x, x की जगह a + b - x। हाँ सर, तो फिर ln sin 0 आ जाएगा इक्वल टू कैसे? ln sin pi। अरे गधेड़ा सुन तो सही, क्या करेगा बता, यहाँ क्या लगाएगा सोच। a + b - t यहाँ पे लिखेगा तो ये कितना बनेगा? पाई - t बनेगा ना। हाँ सर। साइन पाई - t अच्छा हाँ कितना सर, होता हाँ है? सर, समझ गया समझ गया। ठीक है ना? चलो, और किसी बच्चों को डाउट बचा है? प्रियांशु, योर टर्न। प्रियांशु, sir, गो अभी- लिटिल फास्टर। ओके चलो बच्चों ध्यान दो, इस प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट जो है ना ग्रुप पे चला जाएगा तो सबको याद रहेगा, वरना मैं याद दिला दूंगा। अब बच्चों मैं जो एक चीज लास्ट टाइम पढ़ा चुका, शायद 2-3 लेक्चर में बार बार बता चुका, उसको फिर लिख देता हूं तुम्हारे लिए। और तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चन प्रॉपर्टी 6 पे अभी क्लासरूम एग्जांपल्स में बचे हुए हैं। बच्चों ये प्रॉपर्टी याद है ना तुम लोग को? इंटीग्रल यूवी डीएक्स लास्ट टाइम में लिखा था मैंने, ए टू बी में क्या होता है? u इंटीग्रल v dx, यहाँ पे बॉक्स a टू b, बराबर ना बच्चों? हाँ सर। यस सर। इसको इंडेफिनिट की तरह ही करते हैं, यहाँ पे लिमिट नहीं डालते हैं बच्चों, बताया था ना लास्ट टाइम? यस सर। अगर नहीं बताया तो मैं फिर लिख रहा हूं एक्चुअली, a टू b u इंटीग्रल v dx, यहाँ पे भी लिमिट नहीं डालते हैं बच्चों। तो बच्चों तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हो गया इसका, पता नहीं 3rd है शायद, जो भी नंबर है, आई डोंट नो कौन सा नंबर है, 02 1 sin इनवर्स x अपॉन x px। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए। रिमेंबर, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं और इसका आंसर भी लिख दे रहा हूं, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि ये तुम्हारी उसमें स्क्रीनशॉट में नहीं आ पाएगा, π/2 ln 2, ये इसका आंसर है ना? और बच्चों जो 4th और 5th क्वेश्चन है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई रिपीट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। एक तो क्वेश्चन होता है जो घिसना पड़ता है, इसमें घिसना कुछ भी नहीं है, जो नंबर में नेक्स्ट वाला लिखने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आप हिम्मत कर लो एक बार। जिस बच्चे ने हिम्मत करी, मुझे लगता है कि 60 से 70 बच्चों का हाथ ऊपर जाएगा इस क्वेश्चन में। टाइम लगेगा, लेकिन 60 to 70 बच्चे, और ये कंपटीशन होता है बच्चों, इसी को बोलते हैं कंपटीशन। यार अभी तक जो कर लिया है उस पर डिपेंडेंट सर कुछ पूछने जा रहे हैं, 4 बार रिपीट करके क्वेश्चन दे रहे हैं कि 60 to 70 आएंगे। अब कौन पहले आएगा, हाथ खड़ा करते टाइम में सबको पता रहता है कि मैं कौन से नंबर पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्पीड रखना है। क्वेश्चन गंदा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिखने में लगेगा ये इतना गंदा क्वेश्चन बोल रहे हैं, कैसे होगा? पहले ही देखो हाथ खड़ा हो गया उसका। अबे क्वेश्चन नहीं लिखा अभी तो। अच्छा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जबरदस्ती तो हाथ खड़ा करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे, किस दिन कोई पट से पकड़ लूंगा मैं, वो मत करना। अच्छा उसे कुछ पूछना था एक्चुअली, मुझे लग रहा है कुछ पूछना है, तो पूछना क्या है, चक्कर क्या है? अरे यार कोई डाउट है तो पूछना, हाथ ऊपर किया तूने। और एक बात ध्यान रखना, हाथ ऊपर करो ना तो ये समझ के करना कि सर किसी का भी रेंडमली नाम बोल सकते हैं बीच में, बता इसका आंसर क्या है। ये थोड़ी पेन बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं मैं, इधर किसी का भी कैमरा एकदम बोला जा सकता है, ऑन द स्विच ऑन द कैमरा, मर जाओगे सही, गड़बड़ मत कर दो। अच्छा ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, देयर आर 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ व्हिच आई एम राइटिंग वन। 0 to 1 sorry 0 to pi x sin square sin x
प्लस cos स्क्वायर cos x। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा नहीं, है ना, तो वो तो ट्राई कर मत लेना बिल्कुल भी। डेफिनेट की कुछ प्रॉपर्टीज से होएगा। थिंक एंड सॉल्व। अब आपको सबको ही पता रहेगा कि मेरे क्वेश्चन के आंसर से पहले कितने लोगों ने आंसर दिया है। आई विल गिव यू 3-4 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, 5 मिनट्स मैक्स। Seven students have done it. That's nice. आज तुम लोगों को डाउट सेशन भी है क्या 5 बजे के आसपास? सर ये वीक एक भी नहीं आएगा डाउट सेशन। हाँ कॉलेज एग्जाम्स की वजह से सारे डाउट सेशंस कैंसिल हो चुके हैं। अच्छा, इवनिंग आवर्स में कोई डाउट सेशन है ही नहीं इस बार? हाँ, तुम्हारा ही नहीं है कि किसी का भी नहीं है? जरा टाइम टेबल देख के कोई बता सकता है क्या मुझे? किसी का नहीं है सर। किसी का नहीं। अच्छा ठीक है। Nineteen students have done it. बच्चों जिन लोग को 19 स्टूडेंट्स को हो गया है उन लोग को आंसर मैं बता देता हूँ, पाई स्क्वायर बाई 2। यस सर। एकदम मस्त क्वेश्चन है, मतलब कुछ मेहनत नहीं करनी है, प्रॉपर्टी लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, आंसर। सर अगर आंसर होंगे तो हैंड नीचे कर दे। आंसर नहीं आया तो हैंड नीचे करना है, मतलब लाइक आंसर सर गलत पाई है। स्क्वायर बाय 4 आ रहा है। हाँ, नहीं तो हैंड रेज नहीं करना है ना उस कंडीशन में। अच्छा, पाई स्क्वायर बाई 4 नहीं, पाई स्क्वायर बाई 2 ही आंसर। तो देखता हूँ किस बच्चों को समझ में आता है मैंने क्या लिखा। यस सर पाई स्क्वायर बाय 2 ही है। So king King add add property Property 6, for king king add and किंग ऐड एंड आंसर, एंड वाला आंसर। बच्चों इसमें ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर कुछ बचा ही नहीं है एक्चुअली उसके बाद।
सर ये समझ में नहीं आया क्या है या नहीं समझ में आया सर। स्टेप्स हैं। किंग ऐड यूज प्रॉपर्टी 6 वापस किंग ऐड एंड ये आंसर। ये सर, स्टेप आपने 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 4 स्टेप 5 एंड स्टेप 6 मतलब ये आंसर वाला स्टेप हो गया। और ये बहुत फास्ट होता है एक्चुअली। 45 स्टूडेंट्स को हो चुका है। आई एम स्टिल वेटिंग 2 more minutes I can give. कम ऑन बच्चों, इसको नहीं करोगे तो एग्जाम में तुम लोग को तकलीफ होएगा ही होएगा। अरे यार ये लिखने के बाद तो मुझे नहीं लगता किसी का नहीं होगा यार। अच्छा एक और लिख दूं क्या इसके बाद क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. क्योंकि वो भी मतलब इसी स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। इंटीग्रेशन जीरो टू पाई साइन स्क्वायर साइन एक्स, नहीं ये नहीं है, जीरो टू पाई एक्स साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स into cos of sin square x. dx. (48) स्टूडेंट्स ने किया। किसी बच्चे को सॉल्यूशन चाहिए क्या इस क्वेश्चन का? सर आप एक बार फाइनल आंसर रिपीट कर सकते हैं? पाई स्क्वायर बाई 2। ओके। किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो बताओ, मैं कर सकता हूँ, कोई इश्यू थोड़ी है उसमें। बताओ। सर आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये ट्राई करते रहो जिन बच्चों का नहीं हुआ है, बाकी के लिए फिर होमवर्क में छोड़ देंगे। ये आई हुआ, इसमें किंग लगाया, इसमें किंग लगाया तो आई कितना बन गया? पाई माइनस एक्स, जीरो टू पाई में। सर मिस्टेक मिल गया, मैं पाई माइनस एक्स जगह एक्स लिख रहा हूँ। और किसी को प्रूफ चाहिए तो बताओ, और किसी को भी। ऑलराइट, बच्चों ट्राई कर लेना। और कोई भी एक स्टूडेंट 50 में से प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो, अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए नहीं, अपने करियर के लिए। कि जैसे 50 बच्चों का हुआ है, बाकी का नहीं हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी का भी जिसका हुआ है ना, एक पिक्चर लो, स्क्रीनशॉट लो और डाल दो वहां पे, सो दैट रिमेनिंग स्टूडेंट विल गेट टू नो लाइक कि कहाँ हमारी गड़बड़ थी। माइट भी किसी स्टूडेंट ने प्रॉपर्टी 5 अच्छे से नहीं किया है और वो स्ट्रगल कर रहा है आज के लेक्चर में, तो उसको तो नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना आगे, तो उसका सोल्यूशन डाल दो।
that way. So guys, try to solve question number 5. सर वो प्रोडक्ट है कि सम है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट से ओके सर 1 मिनट रुक जाएंगे, फिफ्थ भी अभी सॉल्व करते थे। ये सर फिफ्थ हो ही रहा है सर। ठीक है, फिफ्थ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 मिनट दे देता हूँ फिफ्थ के लिए। अगर आप लोग को हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो फिर इसको होमवर्क के लिए छोड़ देंगे आंसर लिखने के बाद। एंड आई लोअर ऑल द हैंड्स फॉर क्वेश्चन नंबर 4। और जो इसमें कुछ क्वेश्चंस बड़े लेंथी और गंदे भी बनते हैं जो बुकलेट में है, राइट, लेकिन तुम लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन में डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीजन क्या है? मोस्ट ऑफ द गुड क्वेश्चंस आर बीन डिस्कस्ड एंड रिकॉर्डेड। सो एज यू हैव गॉट द रिकॉर्डिंग ऑफ indefinite integration, बच्चों हाउ डिड यू लाइक द indefinite integration का रिकॉर्डिंग? इज इट प्रॉपर और आई नीड टू इम्प्रूव ऑन इट? लाइक कुछ जगह में कुछ फास्ट चले। हाँ, तो कौन सी रिकॉर्डिंग? एक्सरसाइज 2B 10 क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज 3 के 46 to 50 नहीं 76। सर 2B तो अच्छा था, सब समझ में आ गया उससे। फिर 2B में सब है सर। सर 3 भी ठीक ही था, मतलब हो गया। 3 थोड़ा लंबा चला गया सर, इसलिए थोड़ा। हाँ सर, थोड़े लंबे था, कुछ ज्यादा ही था सर। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ी निटी-ग्रिटी ज्यादा, थोड़े लेंथ ज्यादा है ना क्वेश्चन में, तो क्या मतलब कुछ क्वेश्चंस को री रिकॉर्ड करना है क्या बच्चों? नहीं सर, नहीं सर, सब अच्छे से समझ में है। तो आप लोग को जो है ना इंडेफिनेट का भी, ये डेफिनेट वाला भी मिलेगा रिकॉर्डिंग, राइट। इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 तो हैंड रिटन सॉल्यूशन ही मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा 1A 1B 1C 2A 2B 3 एक्सरसाइज 3 डेफिनेट के सारे क्वेश्चन, सारे नहीं मतलब जो अच्छे क्वेश्चन है सब रिकॉर्ड किए हुए तो मिल जाएंगे आप लोग को। सर एक बार आंसर बताएंगे 5 का? 5 स्क्वायर बाई 4 sin 1। Yes, sir. यस सर। ये सर वही है सर एक और बार रिपीट। आई एम राइटिंग द आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन को मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखो, होमवर्क में जो भी तुम लोगों को मिलता है ना, उसको होमवर्क करके ले आओ, ऐसे छोड़ के मत आ जाओ होमवर्क, वरना दिक्कत आएगी। बराबर है? तो गाइज ये प्रियांशु, ये वाला बोर्ड एक बार जरा फटाफट से फोटो ले लो इसकी। यस सर, ठीक। अच्छा ध्यान दो सब लोग, देखो प्रॉपर्टी 5 पे, प्रॉपर्टी 6 पे कुछ 5-6 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन 7 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 3-4 क्वेश्चंस वी हैव डन हियर। 3-4 क्वेश्चंस से ज्यादा का होमवर्क नहीं रहेगा, राइट। तो लेवल्ड असाइनमेंट में मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस तुम लोगों को शायद आज होमवर्क में नहीं, यार तुम्हारे बोर्ड्स का है ना, बोर्ड्स है ना आज, और फिर नेक्स्ट लेक्चर, अब इस बार में शायद 2 ही लेक्चर है अपने, बराबर ना? यस सर, इस वीक 2 ही है। हाँ, तो होमवर्क चलेगा ना? बोर्ड्स के लिए थोड़ी प्रिपेयर, ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ी प्रिपरेशन चाहिए। लेकिन हाँ सर, कॉपी कर लेंगे। तो बस टाइम का इशू है। हाँ, टाइम का इशू तो है, लेकिन यार सब मैनेज करना पड़ता है ना, जो IIT जाने के लिए टाइम मैनेजमेंट ही बेसिक होता है एक्चुअली। आप लोग जब बस हम लोग ध्यान दो, बस 2 मिनट का लेक्चर कंटिन्यू करूंगा, फिर उसके बाद में लेक्चर एंड। अच्छा ये ध्यान दो, ये ग्राफ ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड T है, 0 3T एंड सो ऑन। बच्चों इधर भी है ना? अच्छा एक बात बताओ, पीरियोडिक फंक्शन में ये प्रॉपर्टी 7, हालांकि बच्चों ये ऑथेंटिक प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये एक मतलब जनरल रूल है। हम लोग प्रॉपर्टी 7 8 9 ऐसे लिख देते हैं, जैसे लेवल्ड असाइनमेंट में प्रॉपर्टी 8 तक लिखा हुआ है, पर प्रॉपर्टी 6 तक ही ऑथेंटिक प्रॉपर्टीज NCERT देती है, उसके आगे नहीं देती है। ठीक है, तो तुम लोग जो ना इसको एक्स्ट्रा मान के चलो। ओके, लेवल्ड असाइनमेंट में तो 8 9 भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उस पर ध्यान मत दो बिल्कुल। आप ध्यान से सुनो। अच्छा, इसमें अगर मैं 0 to 3T इसको इंटीग्रेट करूं fx को, तुम्हें नहीं लगता इसका इंटीग्रल 3 times 0 to t fx dx होगा? हाँ सर। यस। तो बच्चों इधर अगर n लिख दूं, यहाँ पे अगर n लिख दूं, राइट, तो ये n टाइम्स हो जाएगा ना? हाँ सर। बराबर। दिस इज पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। हाँ बोलो ना। तो पीरियड T हो जाएगा, पीरियड T है ना इसका? हाँ पीरियड T है। ओके सर। राइट। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, a2 a plus 3t a plus 2t, सॉरी ये 2t हो गया,
राइट, यहाँ तक इंटीग्रेट करना है बच्चों, ये डिस्टेंस भी ए ही है। ओके, तो मैं अगर इंटीग्रेट करना चाहूँ a टू a प्लस 2t fx dx, तो बच्चों ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम हो जाएंगे ना, क्या बोलते हो? यस सर, तो 0 तो to 2 इसको इंटीग्रेट करने का मतलब 0 से 2t इंटीग्रेट करना हो गया ना, और 0 से 2t इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये a गायब हो गया ना यहाँ से, ये क्या बन जाएगा, Yes, 2 sir. टाइम्स 0 to t fx dx। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया ये वाली चीज? प्रॉपर्टी नंबर 7 यही है, इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे। एंड गाइस रिमेंबर वन थिंग, whenever you lose something, no, you are losing your result. I repeat, losing your result. Why I'm saying this, like suppose you are losing property 4, 5, 6 and you are lagging somewhere. If you are not going through that and not recovering it before the next lecture, you will start losing everything actually. So it's my request, I'm not giving you much of the homework these days, right? So try to repeat the theory part as fast as possible actually, because next lecture I'll take on periodicity number 1, and then बच्चों I'll take few more lecture कितने 2 lecture इस वीक में है ना, एक lecture और जरूरत पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा एक lecture और बच्चों 2 lecture में डेफिनेट खत्म होने वाला है तुम्हारा। तो समझो तुम मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ, तेरे ध्यान से समझो इसको। मैं